Good morning, all my dear students. Standard 11th, chapter complex numbers. Solve some important topic questions. Question number. This question here. Let z equal to cos theta plus I sin theta cos theta minus I sin theta. Theta greater than pi by 2 less than pi by 2. Then argument z is. देखिए आपको जो है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, एम्पलीट्यूड, मॉड, that is the most important topic. De Morgan's law. Here argument z, you know that z is equal to x plus I. Argument z is equal to tan inverse y by x. Tan inverse y by x. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बता दिया था कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज ऑफ x प्लस आई वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वन रियल एंड वन इमेजिनरी पार्ट को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट दिस क्वेश्चन cos थीटा प्लस आई sin थीटा cos थीटा माइनस आई sin थीटा, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई. सो this questions may be changed x plus I by now denominator may be rationalization. Denominator का हमें rationalization करना पड़ेगा. cos theta plus I sin theta, denominator cos theta minus then plus I sin theta multiply and cos theta minus I sin theta cos theta plus I sin theta, where z is equal to cos theta plus I sin theta whole square. Now a plus ib, a minus ib means cos square theta plus sin square theta. As a property, complex and conjugate equal to x square plus I square. Here cos 2 theta plus I sin 2 theta upon this value. अब आपके माइंड में होगा कि सर यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, स्क्वायर था तो इसको हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, ऐसा आपके माइंड में होगा. डे मॉर्गन्स लॉ मैंने लिखाया था, डे मॉर्गन्स लॉ z इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो z पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin थीटा, where 2 is multiplied by cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा. चेंज ऑफ De Morgan's law. ओके, दैट कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये कंडीशन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 2. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये किसमें है थीटा, थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 2, देन 2 थीटा. थीटा इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. नाउ cos 2 थीटा, हियर 2 थीटा टू मल्टीप्लाई पाई बाय 2 लेस देन पाई, मींस 2 थीटा पाई बाय 2 एंड पाई 2 थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. ये आपको समझ में आ रहा है. नाउ आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स y by x मींस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा मींस tan इनवर्स tan 2 थीटा. नाउ tan cancel, आंसर 2 थीटा. दिस इज आंसर 2 थीटा. ओके, फर्स्ट चेंज ऑफ complex number is x plus
as a important question number second. If z equal to x plus I1 satisfy amplitude z minus 1 is equal to amplitude z plus 3, then value क्या पूछता है से ऑफ x minus 1 रेशियो y is equal to first 2:1, second 1:3, third -1:3, fourth no. Z is equal to x plus I satisfy amplitude z minus 1 and z plus 3. Value of ratio x minus 1. Now if z is equal to x plus I amplitude of z is equal to tan inverse y minus. Here z is equal to x plus I amplitude वैल्यू रखना पड़ेगा आपको x plus I minus 1. Now amplitude x plus I plus 3, शायद यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, z plus 3 आएगा, ओके 3 आएगा. Real part one side amplitude x minus 1 plus I is equal to amplitude x plus I y plus 3. Formula amplitude. Now tan inverse y means y upon x minus 1 is equal to tan inverse imaginary part y plus 3 upon x. Y upon imaginary tan inverse imaginary value upon real value, tan inverse imaginary value upon real value. Both sides can cancel. Y upon x minus 1 is equal to y plus 3 upon x. Now cross multiplication. X y equal to x minus 1 y plus 3. Now xy plus 3x minus y minus 3. Okay, xy cancel, means 3 common, x minus 1 minus y equal to 0. 3 x minus 1 equal to y. x minus 1 upon y equal to 1/3. क्लियर हो गया? x minus 1, x minus 1 रेशियो y equal to 1:3. ऑप्शन डी राइट. फिर से एक बार देखो, z इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, z इक्वल टू x प्लस I सेटिस्फाई एम्पलीट्यूड. अब इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन को चेंज कर दें, हम z minus 5 लिख दें, z minus 4i लिख दें, एनी हाउ, बट क्वेश्चन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको जानना चाहिए. एम्पलीट्यूड z minus 1 z plus 3i. वैल्यू ऑफ x minus 1 रेशियो y is equal. If z is equal to x plus I amplitude z time inverse y by x. That is the formula. Where z in place of x plus I minus 1, x plus I plus 3i. Real part one side plus I x plus I comma y plus 3.
ऑफ फार्मूला tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y, दैट यूज फार्मूला tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x, tan इनवर्स बोथ साइड कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन xy प्लस 3x माइनस y माइनस xy कैसे 3x है माइनस 3 कॉमन 3x माइनस 1 माइनस y इक्वल टू 0, y राइट साइड प्लस y डिवाइड 3 राइट साइड 1/3, दैट रेशियो 1:3। अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको चेंज कर दूं z प्लस 4 एम्पलीट्यूड z माइनस i, अब आप सॉल्व करो, जो भी रेशियो आया आप उसको फाइंड आउट करो। एम्पलीट्यूड की क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 minus then sigma n equal to 1 to 5 x power n plus 1 upon x power n each। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं लिखा, ऑप्शन में लेता हूँ, वैल्यू कितनी है ऑप्शन में दिया है 8 B 10 C 12 T नो ना। ओके, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फर्स्ट फाइंड आउट रूट्स, x इक्वल टू माइनस b 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू 1 प्लस माइनस I रूट 3 अपॉन 2। दिस इज two roots, you know that omega and omega square, where omega is equal to 1/2 plus I root 3/2. Now omega square 1/2 minus I root 3/2 हमने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फाइंड आउट किया। दिस इज मैंने पहले बोला था कि इफ वैल्यू पावर n एनी हाउ वैल्यू पावर या पावर 5 पावर 6 देन क्वेश्चंस में बी चेंज ऑफ पोलर फॉर्म। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें 1/2 cos π/3 प्लस I प्लस माइनस I sin π/3, अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे, दोनों रूट्स मैंने आपको डिफाइन किया है। ओमेगा cos π/3 प्लस I sin π/3, ओमेगा स्क्वायर cos π/3 माइनस I sin π/3 may be write down in the same way. First find out x power 2n, क्योंकि होल स्क्वायर x power 2n means cos x in place of cos π/3 plus I sin π/3 power 2n, x power 2n value plus minus cos 2n π/3 plus minus I sin 2n π/3, use of Riemann that value x power 2n. Here x power 2n value this and plus x power minus 2n, ऊपर जाएगा तो माइनस में, सेम फाइंड आउट वैल्यू x पावर माइनस 2n आएगा हमको वैल्यू
माइनस बाई 3, हियर प्लस चेंज ऑफ माइनस, माइनस चेंज ऑफ प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस आई साइन 2n पाई बाई 3। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई, हमने निकाल लिया x पावर 2n, आगे हमको यूज में है। अब आप देखो सिग्मा बाद में यूज करेंगे x पावर n प्लस x पावर माइनस n होल स्क्वायर, यहाँ से नहीं आएगा, मैंने वैल्यू निकाला है। अब हम x पावर n को ऊपर ले गए, a प्लस b होल स्क्वायर x पावर 2n प्लस 2 x पावर n x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर माइनस 2 a प्लस b होल स्क्वायर प्लस माइनस वैल्यू 0 मतलब पावर 0, एनी नंबर पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। दिस क्वेश्चन में भी 2n प्लस x पावर 2n प्लस 2 वैल्यू में भी सब्स्टिट्यूट, 2 हमने फर्स्ट में लिखा x पावर 2n cos 2n बाई 3 प्लस माइनस i sin 2n पाई बाई 3 दैट वैल्यू x पावर 2n प्लस cos 2n पाई बाई 3 माइनस प्लस i sin 2n पाई बाई 3। आप देखो x पावर 2n माइनस प्लस, here प्लस here माइनस कैंसल, माइनस 2 प्लस i sin 2n पाई, अगर हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में लिखेंगे अलग अलग तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 2 प्लस 2 cos 2n पाई बाई 3। ओके, क्लियर हो गया। ये वैल्यू किसकी आई x पावर n प्लस x पावर माइनस n होल स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा i इक्वल टू 1 टू 5, अब मैं i इक्वल टू 1 टू 4 कर दूंगी, नहीं आंसर चेंज हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 2n पाई बाई 3 means if I equal to 1 so 2 plus 2 cos I equal to n 2 pi by 3 okay plus I n equal to 2 plus 2 cos 4 pi by 3 plus n equal to 3 2 plus 2 cos 6 pi by 3 ओके। इस तरह से हम इसको 5 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। अब बाद में शॉर्टकट भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको फुल फॉर्म में लिखना है। आप 2 फाइंड कर डायरेक्ट ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और वैल्यू अंदर रखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बार 2 cos 4 लिखा 4 2 जा 8 pi by 3 plus 2 cos 2 plus 2 cos 10 pi by 3 ओके। n equal to 1 to 6 एक स्टेप और बढ़ जाएगा, n equal to 1 to 4 एक स्टेप कम हो जाएगा, 2 to 2 means 10 2 कॉमन ले लो इसमें से cos 2 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 6 pi means 2 pi plus cos 8 pi by 3 हमने डिवाइड कर दिया 2 to 6 plus cos 10 pi by 3। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 10 plus 2 cos pi plus pi by 3 एनी हाउ नहीं पाई माइनस पाई 2 पाई प्लस cos पाई प्लस पाई बाई 3 cos 2 पाई वैल्यू 1 प्लस cos 3 पाई प्लस 3
3 pi minus pi by 3 plus cos 3 3 या 9 plus pi by 3. Okay. There are 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, now pi. आपको रोटेशन pi minus pi by 3 में भी सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव cos pi by 3 वैल्यू -1 by 2. थर्ड क्वाड्रेंट pi plus pi by 3 cos नेगेटिव cos pi by 3 -1 by 2. cos 2 pi 1. 3 pi minus 3 pi पोजीशन ले जाएगा 2 pi plus 3 pi. 3 pi minus सेकेंड क्वाड्रेंट -1 by 2. ओके. 3 pi -1 by 2. 10 plus 2 half of 1 1 minus 1 plus. This question may be given e power I theta cos theta plus I sin theta for triangle ABC. E power I, e power IB, e power IC value -1 1 minus I गुना होगी. अब आप सोचोगे ट्रायंगल यू नो दैट ट्रायंगल आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है उनको याद रखनी चाहिए. सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 मींस पाई. e पावर I थीटा फाइंड e पावर I के cos थीटा प्लस cos a प्लस I sin b. e पावर I b सिमिलरली cos b प्लस I sin b. e पावर I c cos c plus I sin c. Then multiply e power I a, e power I b, e power I c. cos a plus I sin a, cos b plus I sin b, cos c plus I sin c. Means cos a plus b plus c both are plus I sin a plus b plus c may be property. cos theta हमारे पास प्रॉपर्टी था cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2 equal to cos theta 1 plus theta 2 dot plus I sin theta 1 plus theta dot. Where a plus b plus c equal to pi means cos pi plus I sin pi. Cos pi equal to -1, sin pi equal to